We are studying Canto 1, Chapter 5, Narada's instruction on Srimad Bhagavatam to Srila Vyasadeva, text number 21. Tvamatmanatmanam avehamogedrikka parashipumsa paramatmana kalam ajam prajatam jagata shivaitan mahanubhava bhuyudayo diganyatam त्वमात्मनात्मनम् अवयमोगदृक् पराशयापं स परमात्मना कलम् अजं प्रजतं जगतसर्वायतना महानुभावा भयोदयो दिगण्यत्वम् त्वमात्मनात्मनम् अवयमोगदृक् पराशपुंसा परमात्मना कलम् अजं प्रजातं जगता शिवायतन् महानुभावा भूयुदयो दिगण्यतम्. Asta read the shloka. Hare Krishna. Asta पढ़ो. त्वम् आत्मनात्मानम् अयमोघमुद्रिक् परास्य पुंसा परमात्मना कालम् अजां प्रजातां जगतः शिवायतन् महानुभाव्योदयोऽधिगान्दयन्. Yes, Pooja Mataji, go ahead. त्वम् आत्मनात्मनम् अवे अमोघदर्ग प्रास्य पुंसाः परमात्मना कलम् अजं प्रजन्तं जगतः शिवायतन् महानुभाव्याभ्युदयो दिग्यन्तम्. आज सब लोग संडे मना रहे हैं. कोई आया ही नहीं है. संडे को ज्यादा लोग होने चाहिए. सारे छुट्टी मना रहे हैं आज. Word to word meaning. Tvam, yourself, Atmanaha, by your own self, Atmanam, the super soul. Avehi, search out, Amogadrik, one who has perfect vision. Parashaya, of the transcendence. Pumsaha, the personality of Godhead. Paramatmanaha, of the Supreme Lord. Kalam, plenary part. Ajam, birthless. Prajatam, have taken birth. Jagataha, of the world. Shivaya, for the well-being. Tat, that. Mahanubhava, of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Abhyudayaha, past times. Adhiganaya tam, describe most vividly. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Your goodness had perfect vision. You yourself can know the Supreme Soul, personality of Godhead, because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, more vividly. अब यहाँ पे नारद मुनि क्या कह रहे हैं व्यास देव जी को कि तुम्हारा विजन बहुत परफेक्ट है. यू आर द प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड, मतलब उन्हीं के ही अंश हो, उन्हीं की इनकारनेशन हो. Although are birthless, हो, you are appeared on this earth for the well-being of the people. Sometimes the saintly people they appeared in the world for the well-being of the other people in the general. अब जिस श्रील प्रभुपाद थे उनको भगवान ने स्वयं भेजा था धरती पे कि आप जाइए कलयुग में और ये जो पतित आत्मा है इनका उद्धार कीजिए. तो इसलिए उनको यहाँ भेजा था. उसी प्रकार से व्यास देव जी आए थे हम कलयुग के जीवों का उद्धार के लिए, हमें ये भागवतम ये शास्त्र देने के लिए. तो बोला कि इसलिए आप भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए. हरे कृष्णा. अक्षय. Asa, you want to call me? Okay, you can call me. I have my phone on. कर लो, call कर लो. Purport. Srila Vyasadeva is the empowered plenary portion, incarnation of personality of Godhead, Sri Krishna. He descended by his causeless mercy to deliver the fallen souls in the material world. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. क्या बोला है जो व्यास देव जी, he is the empowered plenary portion, incarnation of personality God. मतलब he was empowered by supreme person.
He descended by his causeless mercy to deliver the fallen souls in the material world. वो भौतिक जगत में क्यों आए हैं? इन सबका उद्धार के लिए, हम जीवात्माओं के, पतित आत्माओं के उद्धार के लिए. I think she is not. So the fallen and forgotten souls are detached from the transcendental. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. जो आत्मा है हम लोग like we are fallen. Fallen means we are fall from the spiritual world. इसलिए we are fallen. ठीक है. Forgotten souls because हमें अपना संबंध भगवान के साथ नहीं पता है. ठीक है. इसलिए हम लोग भगवान की जो दिव्य है ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस है उसमें हम एंगेज नहीं होते. हरे कृष्णा. आस्था आवाज आ रही है? हरे कृष्णा. Okay. So that's why we not engage in the loving service of the Lord. The living entities are part and parcel of the Lord, and they are eternally servitors of the Lord. All the Vedic literatures, therefore, are put into systematic order for the benefit of the fallen souls, and it is the duty of the fallen souls to take advantage of such literatures and be freed from the bondage of material existence. तो इसलिए ये जो वैदिक लिटरेचर है इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें व्यास देव जी ने इनको प्रस्तुत किया. किसके लिए? हम सबके लिए, ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें. क्योंकि पहले जो युगों में क्या था? श्रुति मतलब सिर्फ सुन के ही क्या होता है, स्मरण रहता था. इंसान सिर्फ सुन लेता था शिष्य गुरु से, तो बस वो उसको पूरा ध्यान में रहता था. उसको कुछ और करने का मतलब नहीं था कि कुछ और कहीं पे पढ़ना है या नहीं इमीडिएटली याद रहता था. मगर हम लोगों ने अभी शुरुआत में ही पढ़ा कि कलयुग के जो लोग हैं उनकी बुद्धि थोड़ी कम है, उनको नहीं याद रहता, उनकी स्मरण शक्ति कम है, आयु कम है, बिविल्डेड लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं. ठीक है. तो हम लोगों को नहीं याद रहता, इसलिए हमारे लिए रिटर्न फॉर्म में शास्त्र दिए गए. ठीक है. पहली बार रिटर्न फॉर्म में आए, इससे पहले रिटर्न फॉर्म में नहीं थे. कलयुग में रिटर्न फॉर्म में आए हैं शास्त्र हम सबके लिए, ताकि हम उसका फायदा उठा सके. अभी कल एक मैं वीडियो देख रही थी, शिक्षा आश्रम चैनल का कुछ वीडियो है, दैट इज अबाउट रामायण. उन्होंने कुछ वीडियो डाला था कि भगवान राम जी के बारे में बहुत मिथ्स हैं, तो उसके उत्तर वो उसमें दे रहे थे. तो एक पॉइंट उन्होंने जो वहां पे मेंशन किया कि लोगों की कई बार जो धारणा है वो अपने ही विचारों की वजह से धारणा बन जाती है. जैसे भगवान कृष्ण के बारे में धारणा बना लेंगे कि भगवान नहीं है जी, कोई साधारण ऋषि तो है हमारी तरह. तो राम जी को भी बोल देते हैं अरे मनुष्य तो ही है, तभी तो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे थे. तो मतलब उनको ये समझ नहीं पाते हैं कि वो भगवान स्वयं है, वो तो लीला करने आते हैं. ठीक है. इतना नहीं समझ पाते. अब देखिए उसके लिए वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं है, तो इसलिए वो लोग यकीन नहीं करते. ठीक है. सो आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे, वो भी एक जो बोनाफाइड शास्त्र है उसका अध्ययन करें, पढ़े तो उनको उत्तर मिले कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है, कैसे क्या हुआ, तो उनको पता चले. तो इसीलिए व्यासदेव जी ने हमें ये वैदिक लिटरेचर जो है ये प्रोवाइड किए. तो वी हैव टू टेक एडवांटेज कि कल को देखो भक्ति तो ऑब्वियसली कोई बोले तो भाव की बात है. आप बोलो माता जी हमें इतना सब कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है, इतने श्लोका, ये श्लोका, वो श्लोका. तो देखिए ऑब्वियसली भाव की बात है, हम लोग लेक्चर सुन के भी कर सकते हैं, मगर जब तक हम अपने भगवान की लीलाओं का स्मरण ना करें, सुने ना, इसका महत्व हमें ना पता चले कि भगवान के तत्व क्या है, हमारा क्या तत्व है, हम भगवान के बराबर नहीं, हम दास हैं. तो अगर हम लोग इनको शास्त्र से ना अध्ययन करें ना पढ़ें, तो क्या होगा, हम लोग क्या है, वी विल बी लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, और हम किसी को उत्तर देने लायक भी नहीं. अब जैसे मायावादी दे आर वेदांत स्कॉलर्स, सो दे समटाइम्स से इसके लॉर्ड इज इम्पर्सनल, सो हाउ वी आर गोइंग टू आंसर देम. तो वी नीड टू हैव द हियरिंग. ऑब्वियसली हम लोग श्रवण करते हैं, तो वो श्रवण भी कोई शास्त्र से पढ़ के हमें सुनाते हैं. तो वी नीड टू हैव द शास्त्र, यू नो. सो अगर ये है तो हमें इनका फायदा उठाना चाहिए. और प्रभुपाद ने अपना पूरा खून पसीना बहाया इन भागवतम और इन पुस्तकों पे. तो प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होती है जब इन ग्रंथों का वितरण होता है, मगर इससे भी ज्यादा प्रसन्नता होती है जब हम इनको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं. तो इससे भी ये तो सबसे बड़ी एक सेवा है प्रभुपाद के लिए जो हम कर सकते हैं. उनके जो ग्रंथ हैं, जो उन्होंने हमें एक पुस्तकें दी हैं, प्रभुपाद ने कितनी पुस्तकें दी हैं हमें, बहुत सारी. प्रभुपाद की छोटी-छोटी किताबें हैं, चैतन्य चरितामृत है, भागवतम है, भगवद गीता है, कृष्णा बुक है, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट ऑफ डिवोशन है, ईशोपनिषद है. कितनी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं. तो अगर हम सारी तो नहीं, अगर एक किताब भी अगर हम पढ़ सके. प्रभुपाद ने दिन रात किया था इन किताबों को. इवन इवन जब अपना शरीर त्यागने के समय प्रभुपाद डिक्टाफोन पे डिक्टेट कर रहे थे. ठीक है. सो ही डन द होल वर्क, ही डिड. आई रिमेम्बर जब चैतन्य चरितामृत की प्रिंटिंग होनी थी, तो प्रभुपाद ने बोला बस 4 दिनों में इसका पूरा प्रिंटिंग कंप्लीट पूरा कंपाइल करके
शिष्य ने बोला प्रभुपाद ये 4 दिनों में कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी किताबें कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने बोला इसको करो, करना ही पड़ेगा। एंड डिवोटीज डिड इट। उन्होंने 4 दिन, उनको किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं प्रिंटिंग का, एडिटिंग का, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं। पर कहते हैं जब हम एक वैष्णव की बात को मानते हैं तो एम्पावरमेंट खुद आता है और सब कुछ खुद हो जाता है। तो चैतन्य चरितमृत ऑल्टर में था 4 दिन के बाद में। So like it was published and Prabhupada was very happy। और जब ग्रंथों का वितरण होता था प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। तो वितरण के साथ साथ इनको पढ़ना भी है हमको, ठीक है। सो वी हैव टू हैव दिस लिटरेचर, वी नीड टू टेक एडवांटेज। इसको व्यास देव जी ने दिया और इसको श्रील प्रभुपाद जी ने हमें रिटर्न फॉर्म में दिया है। तो इन पुस्तकों को पढ़िए, इनका वितरण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होगी, आपकी आपकी भक्ति में बहुत वृद्धि होगी। तो इनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि कल को कोई कुछ पूछता है आप उनको अच्छे से जवाब दे सके, ठीक है। और श्रद्धा प्रबोध पढ़ेंगे तो आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जैसे बताया जाता है भागवतम भगवान से स्वयं भिन्न नहीं है। तो भागवतम को अगर यदि हम श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, ध्यान से श्रवण करते हैं, तो भगवान का साक्षात हम दर्शन मात्र कर पाएंगे। तो डू रीड देम केयरफुली एंड पे अटेंशन। Please Prabhupada, do this little service for Srila Prabhupada. Okay. Although formally Srila Narada Rishi is his spiritual master, Srila Vyasadeva is not at all dependent on spiritual master because in a sense he is the spiritual master of everyone else. ठीक है। तो दो नारद मुनि यहाँ पे गुरु हैं व्यासदेव जी के, मगर व्यासदेव जी पूरी तरह डिपेंडेंट तो नहीं, मतलब वो खुद भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं बाकी जनों के। बिकॉज ही इज डूइंग द वर्क ऑफ एन आचार्य, he has taught us by his own conduct that one must have a spiritual master even though he is the God himself। अब व्यासदेव जी तो खुद प्लेनरी पोर्शन है भगवान के, ठीक है, मगर वो एक आचार्य का कार्य यहाँ कर रहे हैं। तो उदाहरण तौर पे हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी एक गुरु के अधीन होकर कार्य करना है। अब भगवान स्वयं कृष्ण जब द्वापर युग में आए थे वो भी गुरुकुल गए। ही ऑल्सो वेंट टू द आश्रम ऑफ सांदीपनी मुनि, और उनके अधीन में रह के उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की। बट उनको तो जरूरत नहीं है, कृष्ण को क्या गुरु की क्या जरूरत है, चैतन्य महाप्रभु टू इनिशिएशन, ठीक है। सो उनको क्या जरूरत है, बट दैट इज टू टॉट अस दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, अंडर हिज गाइडेंस वी शुड वर्क, ठीक है। यहाँ लिखा है लॉर्ड श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री राम, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑल इनcarnation गॉडेड एक्सेप्टेड formal spiritual master, although by their transcendental nature they were cognizant of all knowledge। जैसे मैंने बताया भगवान तो स्वयं भगवान है, उनको गुरु की क्या जरूरत है, बट ही एक्सेप्टेड टू टीच अस। हाँ जी, मैंने आपकी मम्मा का फोन नहीं देखा कहीं, मेरा दरवाजा बंद कर। In order to direct people in general to the lotus feet of Lord Shri Krishna, he himself in the incarnation of Vyasadeva is delineating the transcendental pastimes of the Lord। तो क्या बोला, in order to direct people in general, भगवान के चरण कमलों के प्रति भगवान लोगों की आसक्ति बढ़ाने के लिए he himself came as धावी, मेरा दरवाजा बंद कर बच्चे। So he himself came as व्यासदेव टू व्यासदेव के रूप में स्वयं आए हैं, ताकि इन भगवान की लीलाओं को बता के वो लोगों का जो आकर्षण है वो भगवान के चरण कमलों के प्रति करवा सके, ठीक है। तो गुरु का एक कार्य क्या होता है, एक आचार्य का, कि जितने भी जो भूली भटकी आत्माएं हैं उनको भगवान के चरण कमलों तक लेके जाना, उनको एक सही पथ दिखाना। दिस इज द वर्क ऑफ द रियल सेंट और रियल सेज। रियल सेंट और सेज इज नॉट देयर टू ठग यू, टू चीट यू, टू वो आपको ठगने या चीट करने के लिए नहीं होते हैं। दे आर देयर टू ब्रिंग यू एंड टेक यू टूवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। देखिए अब हम लोग इतनी पतित आत्मा है ना, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हम लोग बहुत अशुद्ध हैं, वी आर सो कंडीशन, वी कैन नॉट रेंडर एनी सर्विस टू द लॉर्ड, बट इट्स द मर्सी ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी कृपा है कि हम भगवान के लिए कुछ सेवा करने लायक हैं। नहीं तो हमारी सेवा भगवान क्यों एक्सेप्ट करेंगे, वी आर सो फलन। बट बिकॉज एज कृष्ण सेज, my devotee is not my devotee but pure, but the devotee of my devotee is my devotee। अब भगवान स्वयं को तो हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, कहते अगर आप मेरे शुद्ध भक्त के भक्त बन जाओ तो फिर शायद आपका कुछ हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता कुछ कैसे करना है, कैसे सेवा करते हैं, क्या करना है। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है। देखिए भगवान स्वयं हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में होते हैं। सॉरी भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में होते हैं।
जब एक जीवात्मा थोड़ा उत्सुक होता है या थोड़ा सीरियस हो जाता है भक्ति पथ पे, तो जो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में होते हैं, वो एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हो जाते हैं हमारे गुरु के रूप में। He manifested himself externally in the form of our spiritual master. तो जो हमारे गुरु हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। They are transcendental personality. आप बोलो हमें तो बड़ा भी कोई गुरु जी देख रहे हैं, बट ही इज नॉट इवन, अगर तो वो इस चीज से परे भी नहीं है कि उनको पता भी ना हो कि आप कर क्या रहे हो। तभी तो कहा जाता है ना कि कभी अगर गुरु शरीर त्याग दे शिष्य से पहले, तो still Guru from there has the vision, has the eye on the disciple, what he is doing, and through someone he guides and helps us. You know, किसी न किसी तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं। They are transcendental. They are not the ordinary bodies. They are transcendental. इसके इसके संदर्भ में आपको एक बता सकती हूँ मैं। महाविष्णु गोस्वामी महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल कहे जाते हैं, बहुत शुद्ध वैष्णव रहे हैं हमारे इस्कॉन में। अभी 2010 की 9 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। सो महाविष्णु गोसाई महाराज नासिक में शायद उन्होंने नहीं, राजकोट में कि गुजरात में उन्होंने अपना शरीर त्यागा राजकोट में। तो उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा तो उनकी इच्छा थी कि नासिक उनका क्योंकि जन्मभूमि था, तो उनको था कि उनकी समाधि वहीं पे ही होनी चाहिए। तो ऐसे में था। तो अब राजकोट से, अब क्योंकि वो शरीर त्याग चुके थे, अब मृतक शरीर को वहाँ तक लेके जाना थोड़ा गड़बड़ था। एक्चुअली क्या हुआ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं याद आ रही, बट इंसिडेंट आई वांटेड टू शेयर कि क्या हुआ था महाराज को एक्चुअली। अब देखो जो दिव्य संत होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके मतलब क्योंकि उनके वो दिव्य रहता है, इट्स रिमेन ट्रांसडेंटल। हमारा शरीर है ना, अगर कुछ दिन रखोगे तो सड़ना शुरू हो जाता है, मगर जो शुद्ध वैष्णव है उनका शरीर सड़ता नहीं है, इट रिमेन्स लाइक द बॉडी इट इज, वो हमेशा वैसा के वैसा रहता है। तो उनको मतलब दफनाया जाता है, मतलब जमीन में ऐसे ही दफनाया जाता है, समाधि बनाई जाती है उनकी। तो राजकोट में शायद उनका समाधि कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, देयर आर अघोरीज, अघोरीज आर लाइक द पीपल जो शुद्ध वैष्णवों के शरीर से अगर वो उनका कुछ चमड़ा या कुछ ले लें तो दे गेट वेरी पावरफुल, यू नो। सो व्हाट हैड हैपन, तो महाराज का समाधि तो तब लगाया था, अभी कुछ ऊपर बनाया नहीं था, सिर्फ बॉडी डाली थी जमीन के नीचे। तो क्या हुआ, तो एक अघोरी आया। सो अघोरी इज लाइक देयर मिस्टिक्स, योगीज। उसने आधी रात को वो खुदाई करना शुरू कर दिया नीचे जमीन से। जब खुदाई करना शुरू किया तो महाराज का एक्चुअली वो यहाँ तक ना खुदाई कर चुका था, इट्स लाइक दिस पोर्शन, इतना पोर्शन वो महाराज का मतलब बॉडी का वो वहां नीचे तक खुदाई कर चुका था, मतलब यहाँ शोल्डर तक। तो उतने में जो महाराज के शिष्य थे उन्होंने देख लिया कि कोई खुदाई कर रहा है, एंड दे इमीडिएटली रेन। वो लोग एक्चुअली शरीर लेके जाते हैं, मतलब ऐसे वैष्णवों का, कि ताकि दे गेट द पावर फ्रॉम, बिकॉज दे आर वेरी प्योर, तो उससे दे डू सर्टेन थिंग्स, दे गेट द पावर। सो उन्होंने देख लिया, somehow they saved the body of महाराज। उन्होंने फिर बॉडी जो है महाराज को वहां से निकाला बाहर और उसको पूरा क्लीन अप किया, बाहर रखा। महाराज का बॉडी 2-3 दिन तक बाहर रहा और सबको लगता था कि महाराज जैसे समाधि में बैठे हैं। इट फील्स लाइक ही इज लेफ्ट हिज बॉडी। इतना तेज था महाराज के शरीर में, कोई देख पा रहा था। अभी 2-3 दिन हो चुके थे, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर उन्होंने सोचा कि बॉडी यहाँ से हमें नासिक ही लेके जाना पड़ेगा, वहां पे महाराज का समाधि बनाना पड़ेगा। तो अब देखो, अब ट्रैवलिंग करना है, अब एक बॉडी को अगर आप लेके जा रहे हो तो पुलिस की बड़ी बातचीत होती है, कौन है क्या है, बड़ा चक्कर पड़ता है। और इतना समय था नहीं कि बॉडी को मतलब ऐसे लेके जाते। तो उन्होंने क्या किया, महाराज को गाड़ी में उनको अच्छे से मतलब ही वाज प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप, महाराज को जो ड्राइवर के साथ वाली सीट है वहां बिठाया और बेल्ट लगाया। ही लिटरली सीम्स लाइक ही इज इन अ समाधि। अब जैसे प्रपात के विग्रह देखते हैं ना, आपको कई बार लगता है कि अरे ये तो सच में है, मगर वो तो विग्रह है ना। तो उसी प्रकार महाराज को बांधा, लगाया और गाड़ी रातों रात नासिक तक लेके गए। पुलिस वालों ने बीच में देखा, कहते स्वामी जी, कहते नहीं समाधि में। दे डिडंट इवन एबल टू रिकॉग्नाइज ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट हिज बॉडी, एंड देन दे टुक द बॉडी, महाराज के शव को लेके जाते हैं एंड वहां पे उनका समाधि। दैट्स लाइक 1 वीक प्रोसेस। बट महाराज की बॉडी में जरा सा भी ये बोले कि थोड़ा सा कहीं कुछ स्मेल आना शुरू हुआ या कहीं खराब होना नहीं हुआ। So you can understand those who are the pure Vaishnavas, their body is not ordinary.
दे आर नॉट द ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग्स, दे आर द दिव्य पुरुष। तो हमारे जो गुरुजन है वो दिव्य होते हैं, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल, अंडरस्टैंडिंग। सो जब कोई जीवात्मा सीरियस हो जाती है तो जो चितर गुरु के रूप में भगवान होते हैं तो हमारे समक्ष गुरु के रूप में बाहर आते हैं, ताकि वो हमें फिर आगे गाइड कर सकें कि आपको इस भक्ति पथ पे कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको पता है जो गुरुजन है हमारे, वो क्योंकि शुद्ध वैष्णव है तो उनकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। तो जितने भी शिष्य होते हैं गुरु, उनकी सेवा जो होती है उसको लेते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं। ये जैसा भी आड़ा टेढ़ा है, जैसा भी है, आप कृपया इसकी सेवा को एक्सेप्ट कीजिए। और उस सेवा को लेके जो, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ने कहा है तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग नाउ कि इट्स विदाउट गुरु वी हैव नो वे दैट वी कैन प्रोग्रेस। इट्स बाय देयर मर्सी कि हमें कुछ सेवा का मौका मिलता है कि हम भगवान की कुछ सेवा कर पाते हैं, अदरवाइज हमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या गुण है। जैसे बात है कृपा बिंदु गुरुदेव कृपा बिंदु द्वय, क्या बोलते हैं, गुण अति ही दीना, मुझे लाइन नहीं याद आ रहा है इसमें, कि यदि आप मुझ में कुछ गुण देखें तो वो कुछ नहीं है, आई एम जस्ट द मर्सी मैनिफेस्टेशन ऑफ यू, कि मेरे में खुद का तो कोई गुण नहीं है, अगर कुछ अच्छा है तो इट्स ऑल योर मर्सी माय गुरुदेव। तो ऐसा भजन है उसमें, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही। सो लेट्स ऑल द मर्सी ऑफ द वैष्णव। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए बताया गया है, भगवान ने स्वयं गुरु को धारा, गुरु उन्होंने भी बनाए। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर सो दैट वी कैन प्रोग्रेस इन आवर पाथ। बट अदरवाइज कोई वैसा नहीं है, कहते हैं कि अगर गुरु नहीं है तो आप एक स्ट्रीट के जो गली के कुत्ते होते हैं उसकी तरह हो। अब गली का कुत्ता कभी इधर मुंह मार रहा है, उधर मुंह मार रहा है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है ना। अब जो आपने देखे होंगे वो कुत्ते जिनके मास्टर होते हैं, दे आर वेरी जॉली, उनको पता है यहाँ से मुझे खाना मिलना है, मुझे घूमने जाना है, इधर होना है, दे रिमेन वेरी हैप्पी। सो ये जो हम लोग कंठी पहनते हैं ना, अभी तो 2 स्ट्रिंग्स वाली पहनते हैं जब तक हम इनिशिएट नहीं होते। जब दीक्षा हो जाता है तो 3 स्ट्रिंग्स 3 राउंड्स की पहनते हैं। सो ये हमारे कुत्ते का पट्टा है, काइंड ऑफ लाइक वी हैव आवर गुरु, वी हैव आवर मास्टर, सो लाइक दैट वे। ठीक है, सो स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दैट सिनेरियो सो वी नीड टू वर्क अंडर हिज गाइडेंस। तो हमें उनके अधीन संगीन में रह के हमें कार्य करना है। एंड दे आर टेकिंग अस टू स्पिरिचुअल, हमें भगवान के चरण कमलों की ओर प्रेरित करते हैं, हमें उनके चरण कमलों तक लेके जाते हैं, हमें सेवा में लगाते हैं, महत्व बताते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं। तभी हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, कि अंधकार से, मैं तो अंधकार में था मगर गुरु जी की टॉर्च लाइट से, मतलब he gives through the ज्ञान of knowledge he opened my eyes. So because they opened our eyes how to work, they show us the path. So गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो तो हमारे माता पिता से भी ऊपर होती है। कल भी आई थिंक नवेंद्र महाराज was telling in a lecture, I didn't heard fully, my mother was listening, so महाराज was telling about it, कि जो गुरु है वो माता पिता से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि माता पिता तो हमें जन्म दे देते हैं मगर जो सही ज्ञान है वो तो हमें हमारे गुरु ही देते हैं। सो दैट्स हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बात नहीं कि माता पिता को छोड़ दो, नहीं, आप उनकी भी सेवा कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हीं से ये शरीर हमें मिला है। सो आप उनकी सेवा हमें करनी है। मगर गुरुजन है, कहते हैं माता पिता तो हमें हर जन्म में मिलेंगे, शिव प्रपात कहते हैं, मगर टू हैव गुरु एंड कृष्ण इज वेरी रेयर। सो इट्स आर फॉर्चुनेट, कहते हैं कौन ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पीछ। तो पूरे ब्रह्मांड में कौन वो भाग्यशाली जीव है कि इतना भ्रमण करने के बाद कि जिसको गुरु और कृष्ण जीवन में मिलते हैं, दैट्स वेरी रेयर सोल। तो वो बहुत भाग्यशाली सोल होती है जिसको ऐसा मिलता है। विल रीड फर्दर। इदा इदाम हि पुंसा तपसा श्रुता सेवाः शिवस्तसुप्ता सच बुद्धि दत्तयो अविचूयतार्था कविभिः निरूपितो यद उत्तम श्लोका गुणानुवर्णनम्। Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerity, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity, culminates in the transcendental description of the Lord, who is defined in choice poetry. ठीक है, उत्तम श्लोका कहा जाता है, तो मतलब उत्तम श्लोका भगवान को कहा जाता है क्योंकि भगवान को चॉइसेस्ट पोइट्री से उनका वर्णन किया जाता है, मतलब जो बेस्ट पोइट्री होती है उनसे उनको वर्णन किया जाता है, जैसे उत्तम श्लोक। तो यहाँ बताया जा रहा है, आप कोई भी अगर आप तपस्या कर रहे हैं या शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या दान पुण्य करते हैं या ज्ञान लेते हैं, वो सब कहाँ कल्मिनेट हो जाता है सारा? भगवान की लीलाओं में। ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। आप सिर्फ भगवान की लीलाओं का वर्णन श्रवण कीजिए, ये सारी चीजें उसी में ही कवर अप हो जाती है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रपद बताते हैं
Human intellect is developed for advancement of learning in art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, economics, politics, etc. By culture of such knowledge, the human society can attain perfection of life. This perfection of life culminates in the realization of the Supreme Being, Vishnu. The Shruti therefore direct that those who are actually advanced in learning such should aspire for the service of Lord Vishnu. Unfortunately, persons who are enamored by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that culmination of perfection or self-realization depends on Vishnu. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. अब देखिए मनुष्य जो है स्टार्टिंग से ज्ञान अर्जित तो करता ही है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ते हैं, उस ज्ञान की परफेक्शन कब है? जब हम भगवान की सेवा में लगे, ठीक है, विष्णु को जानने का प्रयास करें, तब हमारे उस ज्ञान की हमारी परफेक्शन परफेक्शन होती है। अदरवाइज जस्ट यू गेट एनमर्ड बाय द विष्णु माया। भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो तो किसके प्रति आसक्त हो? उनकी माया के प्रति। माया क्या है? माया विच इज नॉट, जो होती नहीं है असल में, अगर हमें लगती है वो माया है, ठीक है। माया मीन्स सेंस एंजॉयमेंट। आप इंद्र तृप्ति में लगते हैं, एंड व्हेन यू इंट्रैप्ड यू आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज, ठीक है। तो आपने इंद्र तृप्ति में उसको व्यर्थ कर दिया। तो नारद मुनि हैज एक्सप्लेन्ड दैट ऑल पैराफिनेलिया ऑफ कॉस्मिक यूनिवर्स is but an emanation from the Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the action and reaction of the created manifestation. They have come to be out of his energy, they rest on his energy, and after annihilation they merge into him. Nothing is therefore different from him, but at the same time the Lord is always different from them. कि जो भगवान की एनर्जी है वो उनसे भिन्न तो नहीं है, मगर भगवान के बराबर भी नहीं मानी जा सकती, ठीक है। सो इन दैट वे सो वी नीड टू सर्व द लॉर्ड। उनकी जो बाह्यरंग शक्ति है माया, उससे आकर्षित नहीं होना हमें। दिस इज द पैकेजिंग जो हमें आकर्षित कर जाती है। हम किसी व्यक्ति के प्रति क्यों आकर्षित हो जाते हैं? बाहर रूप देख के बड़ा आकर्षित, बड़ा सुंदर दिख रहा है कोई, तो वो भाई एक्सटर्नल बॉडी है। अगर ये बाहर की स्किन नहीं ना हो तो सबके अंदर की आंतरियां दिखेंगी, फिर आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, इतना बुरा दिखता है, ठीक है। देयर इज द एक्सटर्नल कवरिंग दैट अट्रैक्ट्स अस, but there is no benefits. So when advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process become absolute. तो जब ज्ञान को हम भगवान की सेवा में, जो विज्ञान में सही में लगाते हैं, तो वो सही में उस प्रोसेस को परफेक्ट माना जाएगा। The personality of Godhead and his transcendental name, fame, glory, etc. are all non-different from him. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of Lord. तो कोई भी ज्ञान की जो भी ब्रांच है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। Art, literature, poetry, painting may be used in glorifying the Lord. The fiction writers, poets and celebrated literatures are generally engaged in writing of sensuous object. अब आजकल के देखिए आर्ट, लिटरेचर है, पोइट्री है, ये पेंटिंग है, इनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है। अब आजकल के जो फिक्शन राइटर्स हैं, कविकार हैं, या जो लिटरेचर लिखते हैं, ये सब किनके बारे में लिखते हैं? नॉवेल्स लिखते हैं, तो जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, ऐसे ही चलता है। जैसे चेतन भगत है, कितने ही उनके नॉवेल्स रहे हैं, जस्ट ऑल नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस। जस्ट उनकी बात नहीं कर रहे हो, डोंट बी ऑफेंडेड अगर कोई उनका फैन रहा है। सो इट्स ऑल नॉनसेंस, ठीक है, सब कुछ बेकार की बातें हैं, नथिंग अबाउट द गॉड, ठीक है। सो जैसे एम एफ बहुत फेमस चरित्रकार हैं, मतलब वो पेंटर हैं, but all the nonsense painting he makes, it doesn't make anything of for Lord, you know. If they turn toward the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. तो अगर अब जैसे लता मंगेशकर जी, उनकी आवाज कितनी सुंदर है, तो यदि वो उसको, उन्होंने कोई 30,000 गाने गाए हैं, more than 30,000. मोहम्मद रफी more than 28,000 songs they have composed and sing. अगर वही गाने उन्होंने भगवान की ग्लोरी गुणगान के लिए गाए हो तो कितना भला हो, इतनी अच्छी सुंदर मधुर आवाज है उनकी, ठीक है। जैसे हमें हुसैन इतने अच्छे पेंटर हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे ये जैसे बहुत सारे कविकार रहे हैं, so if they all use their talent in the service of Lord, how much benefit they will be getting. So Valmiki was a great poet and similarly Vyasadeva is a great writer. अब वाल्मीकि जी बहुत बड़े कविकार रहे हैं और व्यासदेव जी राइटर रहे हैं। Both of them absolutely engaged themselves in delineating the transcendental activities of the Lord and by doing so have become immortal. तो वाल्मीकि जी ने रामायण दिया और व्यासदेव जी ने भागवतम और उपनिषद और वेदास दिए। Similarly, science and philosophy also should be applied in the service of the Lord.
There is no use presenting dry speculative theories for sense gratification. आप बोलेंगे माता जी साइंस को कैसे अप्लाई करना है? तो हमारे एक महाराज रहे श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल स्वरूप दामोदर महाराज, अभी तो वो शरीर त्याग चुके हैं। उन्होंने ही वाज टीडी सिंह, ही वाज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट रहे हैं। आपने वो किताब देखा होगा प्रभुपाद का, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। दिस इज द मॉर्निंग कन्वर्सेशन दैट वर्क इज गिवन बाय महाराज स्वरूप दामोदर महाराज। And the another book, the present scientific presentation of Krishna consciousness, there is a small booklet. तो वो भी उन्होंने दिया है। He even used to invite scientists and talk about the God in front of them, how the cosmic manifestation is coming from God. He used to have those meetings, you know. तो प्रपात बहुत प्रसन्न होते थे। उनको प्रपात ने बोला था कि आप साइंटिफिक वे में हमारी कृष्ण भारत को बुलाइए, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, बताओ। He did that thing. So he used his scientific knowledge in the service of God. So that way one can use. So philosophy science should be engaged to establish the glory of the Lord. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science, and therefore a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on a scientific basis. Similarly, अब जैसे modern archaeology एक किताब है, modern archaeology, forbidden archaeology, sorry, let me show you all. Forbidden archaeology, अब जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में आदि मानव के बारे में बात पढ़ी है ना? Forbidden archaeology, ये किताब है, yeah, this is the book Forbidden archaeology. Yeah, this is the book. अब ये जो किताब है, ये क्या है, ये पुराने टाइम को ही बताता है। जैसे आदि मानव या उन चीजों की बातें की जाती हैं कि बोला कि मनुष्य में वैसा रहा, ऐसा रहा। So this is written by Michael A. Cremo and Richard L. Thompson, and actually they are the disciples of Srila Prabhupada. ये दोनों कौन है? भगवान श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, ठीक है। ये भी साइंटिस्ट है, जियोलॉजिस्ट हैं, कुछ ऐसे रहे हैं। तो इन्होंने ये किताब लिखा है, एंड दे हैव प्रेजेंटेड कृष्णा मतलब अपने लिटरेचर्स को इन किताबों में प्रेजेंट किया है। फॉरबिडन आर्कियोलॉजी इज लाइक जिन जो आदि मानव बोलते हैं कि हमारी सभ्यता में तो ऐसे ऐसे आदि मानव से आए हम लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग राम जी ऐसे ही हमारी हिस्ट्री रही है, नॉट दिस आदि मानव एंड ऑल, ठीक है। सो उन्होंने इन किताबों में मेंशन किया। तो देखिए अपने ज्ञान को सही तरीके से बताने का प्रस्तुत किया है ना इन लोगों ने। So that's we need to use in service of Lord, ठीक है। Similarly, philosophical speculation should be utilized to establish the supreme truth as sentient and all powerful. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of Lord. तो जितने भी ज्ञान की जो ब्रांचेस है सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। So in the Bhagavad Gita also the same is affirmed. All knowledge not engaged in the service of Lord is but nuisance. कोई भी ज्ञान जो भगवान की सेवा में नहीं लगाया वो क्या है? Nuisance है। Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. तो सही तरीका क्या है ज्ञान को सही से तरीके लगाने में? भगवान के गुणगान में लगाने के लिए। Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activity are actually हरि कीर्तना और glorification of the Lord, ठीक है। तो उनकी सेवा में हमें लगाना है। कोई भी ज्ञान है आपके पास, जो कोई भी टैलेंट है, कुछ भी है, भगवान की सेवा में लगाइए, that is perfect. But if it is not engaged in the service of Lord, then it is disturbance to the society, ठीक है। तो अभी आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है या कुछ पूछना चाहे या बोलना चाहे? आस्था, don't make noise. You have something, so please speak up. So any of you having any questions or comments, please go ahead. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Asta Mataji, don't make noise. If you have something, please speak up. Yes, any of you having any questions or comments? We are having 4 minutes. किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहे या कुछ शेयर करना चाहे? हरे कृष्णा। Okay, Asta. Any of you here online? Okay, Pooja has no questions. What about Akshay? Akshay has no. कौन माता जी आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। नो माता जी। नो माता जी, सोए हो आप? हैं? चलिए, नो माता जी। we will be ending. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की बड़ी जय। Thank you so much all. Maybe in the evening I'm not sure about the class. If there will be class, we'll notify you.
तो आपको शाम को मिलेंगे, नहीं तो कल सुबह भागवतम क्लास में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।